Hello? Guys, is it fine now? Please confirm in the chat box. I'll speak everything. Don't worry. मैं सारा इंट्रोडक्शन फिर से दे दूंगी. Please confirm if I am audible. जल्दी से. Till the time just turning on. Okay guys, so I think we should start. Just please confirm me if I am clearly audible to everyone. I've just switched on, restarted the device that I'm using. So please confirm. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे देती हूँ till the time and you have to just confirm. Okay, so let me just introduce myself again. I am Anjali Ahuja, biology faculty of Ask Kitin, and today we are going to learn here. I mean, for the InstaSolve we are solving the problems with. Today we are going to solve the very important topic which is हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. हमारी इकोलॉजी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स. इसके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और 100% श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ नीट एग्जाम में पक्का आएगा. या तो वो ग्रोथ रेट जो वाला क्वेश्चन होता है पॉपुलेशन का, या फिर हार्डी-विनबर्ग. तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए, दे वांटेड टू लर्न दिस टॉपिक. सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. मैम बहुत धीरे आवाज़ है आपकी. गाइज आई थिंक इट शुड बी वेरी वेल. प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में सो दैट आई कैन स्टार्ट टीचिंग. सो इज इट क्लियरली ऑडिबल गाइज? जस्ट गिव मी 2 minutes, हाँ? Not 2 minutes, I am there only. Just confirm me in the chat box, everyone. Guys, please just confirm it in the chat box. I need to start the topic now. I was just waiting for your confirmation. Chalu, theek hai, I am starting teaching, and till the time you can just put a message again. I will, restart it up. Okay guys, so let's start learning now. So what we have to do is, first of all, we have to understand, because we are doing the topic Hardy-Weinberg principle, which is one of the very important topic from the population genetics. हमें कुछ भी समझने से पहले गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आने वाले हैं, ठीक है? ओके, हाय एवरीवन, हाय. ओके, आई कैन हियर नाउ, आई कैन रीड योर मैसेजेस गाइस. थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग. सो सबसे पहले गाइस, what is population? It's a group of individual of particular species. Guys, if you remember the living world 11th के सबसे पहले चैप्टर में हम जो लर्न करते हैं स्पीसीज की डेफिनेशन, वो ये है कि स्पीसीज इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर. बट बहुत सारी स्पीसीज से बनती है पॉपुलेशन. तो यहाँ पर है a group of individual of particular species occupying a definite space in which the individual interact, interbreed and exchange a genetic material. Species के ही कुछ individual जो interact करें, they living together. So that is population. अब हम समझेंगे what is population genetics. तो population genetics क्या होती है guys? Population genetics is study of distribution and changes of allele frequency and interaction of allele in a population. मतलब, so I have a question guys. First of all, you have to define what is allele. फटाफट से देखो तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है. एवरी टाइम आई जस्ट चेक यू कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है. कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी वाले में तो लगा कि बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत है. अलील बता दो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बता दूंगी. आ तो रहे हैं रिप्लाई. So guys, allele. First of all, we have to understand what is gene, which is a unit of inheritance. क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं. ऑन द क्रोमोसोम पेयर देयर इज ऑलवेज अ जीन पेयर. मीन्स ऑन अ क्रोमोसोम पेयर देयर आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. सपोज ये है क्रोमोसोम, होल्ड ऑन ना, yeah, suppose this is a chromosome guys and this is a chromosome pair.
chromosome pair पे there will always be a pair of gene. So suppose one gene is there and one is here. Suppose this is capital W and this is small w. Means this is for some white color and this is for black color. Point is both of these factor, जिसको हम मेंडेलियन फैक्टर भी बुलाते हैं, both of these factor or the genes they are controlling color. But these together they are known as allele. Together they are allele, separately they are gene. So now let's understand the definition, guys. Study of distribution and changes of allele frequency and interaction of allele in a population. Population के बीच में कैसे ये genes, कैसे ये allele interact करते हैं और कैसे affect होते हैं, that is population genetics. Population genetics को understand करने के लिए एक सबसे important principle है, that is Hardy-Weinberg principle. That's what we have to learn. Okay, let me just clear the screen and then we just continue, guys. So guys, मैंने स्क्रीन पे लिखा है evolutionary forces. Hi people, how are you? I can read your messages now. I mean, I was reading it already though, so I'm replying. Evolutionary forces. Okay, so guys, ये जो next point है वो ये है कि whenever evolution happen, उसके बहुत सारे कारण होते हैं. उसके सबसे important 4 reasons जो हैं वो ये हैं. According to Hardy-Weinberg itself too, but yes, these are the reasons. सबसे पहले होता है natural selection. मतलब हार्डी-विनबर्ग ने तो उसको थम्स अप कर दिया, बट वी नो नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन, नेचर इज सेलेक्टिंग द बेस्ट, देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट एवोल्यूशन हैपेंड. नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा टॉपिक है, सुनने में बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते, जबकि बहुत ईजी है, क्योंकि अलील में जितने भी फ्रीक्वेंसी सडनली चेंज आते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. सैम्पलिंग एरर टाइप का होता है ये, मतलब इट्स लाइक यू नो सम चेंजेस हैपन ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, सिंपली दैट्स जेनेटिक ड्रिफ्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है गाइस, यू कैन जस्ट रीड दैट्स म्यूटेशन. अकॉर्डिंग टू ह्यूजो डी व्रीज, म्यूटेशन इज द सडन चेंज दैट हैपन इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन. इज दैट क्लियर गाइस? सो वी हैव वन लास्ट पॉइंट विच इज जीन फ्लो. जीन फ्लो एज इन पॉपुलेशन के अंदर, विद इन द पॉपुलेशन जीन कैसे फ्लो होता रहता है फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म टू दिस वन. That's gene flow. These are very important reasons that evolution happened. हमारे प्रिय हार्डी-विनबर्ग जी ने ये कहा कि मैं एक पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए एक इक्विलिब्रियम का एक आइडियल सिचुएशन कंसीडर कर लेता हूँ. ये सारे फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, एवोल्यूशन हो रहा है लेकिन ये सब फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं. मैं आइडियल सिचुएशन में एक फॉर्मूला दे रहा हूँ. एक्चुअली उसके साथ एक और, मतलब देयर वर 2 पीपल, आई जस्ट टेल यू. मैथमेटिशियन भी था जिसने कैलकुलेशन वाली फॉर्म में उसको जस्ट कन्वर्ट किया. एनीवेज, अभी के लिए हमें यही समझना है कि हार्डी-विनबर्ग ने जब अपना पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया तो उसने आइडियल कंडीशन को इमेजिन किया कि कोई भी मतलब ये जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा, बस चल रहा है. जीन फ्लो हो रहा है, जीन फ्लो एज इन नॉर्मली, विदाउट यू नो जीन फ्लो एज इन सडन चेंजेस हैपन बिकॉज ऑफ इट. Normally evolution is happening. So let's just read further. Hi Rajni, how are you? And अगर आप लास्ट क्लास में थे तो अपनी नाम भी बता सकते हैं और अपनी अटेंडेंस भी दे सकते हैं दैट हाँ हम थे. ठीक है, चलो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अभी यहाँ लिखने का तो कुछ नहीं है, लिखने का हम बाद में करेंगे. वेयर इज इट? अच्छा, सो व्हाट इज इट? हार्डी-विनबर्ग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस हमें पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना. इट्स एन एल्जेब्रिक इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द जेनेटिक इक्विलिब्रियम. जेनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन में जो भी फैक्टर मैंने आपको बताया है, दे आर एक्टिंग विद इन अ पॉपुलेशन. इट वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली इन 1908 बाय विलियम विनबर्ग, अ जर्मन फिजिशियन, एंड गॉडफ्रे हेरोल्ड हार्डी, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन. अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये सारी फोर्सेस जो हैं हम कंसीडर कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिंग, दे आर नॉट कमिंग इनटू द प्ले. दैट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर गाइस. ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ सबसे पहले मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज अनदर डेफिनेशन, अब मैं बढ़ती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये भी बताऊंगी. अदर देन जस्ट कंसीडरिंग दोज आइडियल सिचुएशन, और क्या बोला हार्डी-विनबर्ग ने. एनीवेज, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल प्रिडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. नहीं पता तो हम जेनेटिक्स की एक और क्लास लगा सकते हैं, नो इश्यूज, बट जीनोटाइप द जेनेटिक मेक. सो हमने क्या बोला कि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो जीनोटाइप की मतलब जीन्स मेकअप की फ्रीक्वेंसी है, दे विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अ पॉपुलेशन दैट इज नॉट सब्जेक्ट इन एवोल्यूशनरी फोर्स्ड, मतलब एक फोर्स्ड एवोल्यूशन होता है ना, इन सब रीजंस की वजह से, जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, प्रॉब्ली नेक्स्ट स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसकी वजह से जो होता है वो एक्ट नहीं कर रही हैं. एंड देन इन आइडियल सिचुएशन देयर इज अ फॉर्मूला. नाउ व्हाट दैट फॉर्मूला इज, आई विल टेल यू.
एंड इसीलिए ना इन्होंने बोला है कि उसको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्योंकि दैट्स टोटली कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. I can't understand. गाइस, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में कुछ भी नहीं है. मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है उसका फॉर्मूला और उस पर बेस न्यूमेरिकल. हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे हम ये देखते हैं कि वो जो जीन्स हैं, जो अलील्स हैं, उनकी एक आइडियल सिचुएशन में क्या फ्रीक्वेंसी है. अलील फ्रीक्वेंसी समझते हो आप? अलील फ्रीक्वेंसी मतलब कि सपोज 100 जीन्स हैं, 100 जीन्स, उसमें से कुछ 20 जीन्स जो है वो कलर के लिए हैं, तो इसकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? 20%. समझ रहे हो? अलील फ्रीक्वेंसी होता है टोटल में कितनी परसेंटेज है. जो हार्डी विनबर्ग है उसने इसी अलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूरे फॉर्मूले दे दिए. अब तक जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं ये बता रही हूँ कि हार्डी विनबर्ग की जो ये इक्वेशन है अलील फ्रीक्वेंसी वाली, ये आइडियल सिचुएशन में सिर्फ मतलब एक्ट करती है. इट्स जस्ट एप्लीकेबल इन दैट सिचुएशन. आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड इट. Waste. Okay, I can explain it again, don't worry. The implication of the Hardy-Weinberg law. हमने हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो हम स्टडी कर रहे हैं वो उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या सिचुएशन मतलब हम लोग मानते हैं. एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द हार्डी-विनबर्ग इट डिस्क्राइब्स द फिनोमेना वेयर बाय अलील फ्रीक्वेंसी इन अ नॉन चेंजिंग पॉपुलेशन डू नॉट चेंज बिटवीन जनरेशन. जनरेशन टू जनरेशन जितनी भी जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं करती हैं. गाइस, आपको शायद ये इस वजह से समझ नहीं आ रहा कि आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ. यहाँ पे इसने बोला कि जो अलील फ्रीक्वेंसी है एक जीन फ्रीक्वेंसी है, द परसेंटेज ऑफ जीन वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एवोल्यूशन के तो फैक्टर ही हम कंसीडर नहीं कर रहे. एक आइडियल सिचुएशन में हम उसे स्टडी कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट नाउ? उसके बाद उसने बोला, देखो ये आइडियल वर्ड मैंने यहाँ कम से कम 10 बार बोल दिया और अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो नाउ आई थिंक यू शुड वॉच द वीडियो अगेन. The population geneticists used to study past and present genotype frequency and to predict the future effect of evolution. उसने क्या किया? हार्डी विनबर्ग ने पुराने और फ्यूचर के सारी जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया. On the basis of that he has given certain predictions considering again ideal population. You don't understand, just stop the video and then see more important. Thank you for the compliment, guys. The Hardy-Weinberg equilibrium applies when a population is not subject. I think I will not be repeating it because I have told you this 2 or 3 times. Okay guys, so now let's proceed further. Let's get into the technical thing that he has told. हमने अब तक जो पढ़ा है population क्या है, population genetics क्या है, Hardy-Weinberg ने जो principle दिया उसके basic concept उसने जो consider किया वो क्या था. अब उसका जो रिजल्ट है वो ये है. अकॉर्डिंग टू हिम इट्स जस्ट एन अलजेब्रिक फॉर्मूला. पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q डबल स्क्वायर प्लस 1. दैट्स इक्वल टू 1. द सिंपल फॉर्मूला दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइज, द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू लर्न, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर. यही तो मैथ्स में पढ़ा है आपने. तो अब यहाँ पे मतलब हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला इस फॉर्मूले के अंदर, जो हमारा पी स्क्वायर है दैट्स एक्चुअली अ डोमिनेंट जीन और जो क्यू स्क्वायर है दैट्स एक्चुअली अ रिसेसिव जीन. यही हमने ऐसे ही सॉल्व करना है गाइस. प्लस 2pq क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन. नाउ लेट मी टेल यू गाइस, देखो अगर मैं इसको pq की फॉर्म में लिखूं या a की फॉर्म में लिखूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ दैट सेम. अगर मैं बोल रही हूँ कोई कैपिटल P कंडीशन है दैट इज अ होमोजाइगस कंडीशन. मैं बोल रही हूँ कैपिटल P कैपिटल Q सॉरी स्मॉल q दैट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन. और इसके साथ मैं बोल रही हूँ कैपिटल स्मॉल q एंड स्मॉल q सॉरी दैट इज अ होमोजाइगस कंडीशन. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेट्रोजाइगस. आपको इस फॉर्मूले में सिर्फ ये याद रखना है, जो P है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील, मतलब इसको मैं कैपिटल A भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, और Q है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील, इसको मैं स्मॉल a भी लिख सकती हूँ यहाँ पे. P स्क्वायर इज कंसिडर A स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में A और P वर्ड यूज करते हैं, तो A स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का आ जाएगा. होमोजाइगस वर्ड से ही समझ आ रहा है कि 2 जीन्स आने वाले हैं. और यहाँ पे है q स्क्वायर इज स्मॉल a स्क्वायर, दैट इज परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल. 2pq इज परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. Hi everyone. Guys, are you understanding? This is the basic formula of Hardy-Weinberg principle.
p square plus q square plus 2pq is equal to 1 और p plus q is equal to 1. इसकी जगह पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी टोटल. अगर मैं इन दोनों की जीन फ्रीक्वेंसी कंसीडर करूं तो टोटल 1 आएगा, या फिर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं तो भी टोटल 1 आएगा. ये जो है ये इंडिविजुअल जीन फ्रीक्वेंसी है, ये डोमिनेंट की है, ये रिसेसिव की है और ये हेटेरोजाइगस की है. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट. इसी फॉर्मूले के बेस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. सो गाइज नाउ आई थिंक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई. लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. हाय पीपल, हाउ आर यू? So guys, we are going to solve the numericals now. Okay. It's time to practice. So let's solve the first question, guys. You have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous recessive genotype AA is 36%. Using that 36%, calculate the following. तो अब यहाँ पे इसको a को आप q स्क्वायर मान सकते हो. तो इसने क्या वैल्यू दी है कि जो q स्क्वायर है गाइस दैट इज 36%, मतलब 0.36, दैट इज द वैल्यू. अगर हम इसको अलील फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं तो आपको ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने हैं. कर सकते हो फॉर्मूले से, जस्ट डू इट फास्ट. मैं आपको क्लूज दे दूंगी गाइस, इसके चिंता मत करो. देखो मैं आपको हेल्प करने के लिए बोल देती हूँ. क्यू स्क्वायर है तो क्यू वैल्यू क्या होगा, इसका अंडर रूट कर लोगे आप तो दैट विल बी 0.6 हो जाएगा. 0.6 होगा गाइस. तो इधर से कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आएगा जल्दी से. हाय, मतलब Q आ गया तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1. P का वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से. हाय, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AA जीनोटाइप. AA जीनोटाइप मतलब सेम होगा, इजंट इट? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AA जीनोटाइप 0.36. स्क्वायर का इन्होंने सिंगल कर दिया तो ये आ गया हमारा 0.6, द वैल्यू ऑफ ए. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए एलील मतलब P प्लस Q इज इक्वल टू या फिर कैपिटल A प्लस स्मॉल a इज इक्वल टू 1. तो आपको क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना सिंपली. हमारे पास Q की वैल्यू है तो 1 माइनस 0.6 हो जाएगा, ये 0.4 इसका आंसर आ जाएगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल A एंड दिस वन. कैलकुलेट दिस गाइस, कम ऑन. मुझे इसके फोर्थ पार्ट का कैलकुलेट करके बता दो. और गाइस अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो रिप्ले कर लेना. अब तक जो भी मैंने बताया वो सिर्फ डेफिनेशंस बताए हैं और कुछ भी नहीं. मेन हमारा जो आरडी विनबर्ग में आता है वो प्रिंसिपल, उसका बेसिक फॉर्मूला जो आता है वही आता है और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, और यही हमारे नीट एग्जाम में आने बस. Come on guys, tell me the answer of D. The frequency of the genotype capital A and capital A small a. अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक और क्लू बता देती हूँ क्योंकि मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं. कैपिटल ए जो है ये है हमारा P स्क्वायर वैल्यू. कैपिटल A स्मॉल a है हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो हेट्रोजाइगस का बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर इज 2pq. अब सॉल्व करो. P स्क्वायर क्या होगा, 0.4 का डबल कर दो. 2pq क्या होगा, 0.6, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2. .16. Very nice. Somebody is coming. Can you tell me your name? That's so nice. Who has answered this question? Nice. I like it. That's a perfect answer. Now, could you tell me answer for the last one, dear? The frequency of the two possible phenotype if A is completely dominant over A. Small a means. The frequencies of the two possible phenotype if capital A is completely dominant over small a.
मतलब यहाँ पे हाय अदिति, नाइस नाइस, आई रियली अप्रिशिएट यू। अच्छा, ये जो कंडीशन है ना, इन्होंने ये बोला है हमें वो कंडीशन बतानी है जब जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट होगा। तो दो कंडीशन में डोमिनेंट होगा, या तो वो जो जेनेटिक मेकअप है वो होगा कैपिटल ए, या फिर होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। आपको ये वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करनी है। बहुत लोग वो यहाँ कैलकुलेट कर सकते थे, बट इन्होंने सीधा हेट्रोजाइगस पूछा है, तो हमें 2pq कैलकुलेट करना था। नीचे हमने ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Come on guys. वैसे एक बात बोलूं, you have sampled a population in which you know the percentage of the homozygous recessive is 36, बाकी कितना बचा 64, तो बस वही 64 ही है जहाँ पे डोमिनेंट है, क्योंकि बाकी 36% तो यही है ना, तो यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज सम यू नो। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। Okay dear, so I am just clearing this up and I am moving to the next question now. Okay, next question दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा या डर लग रहा होगा, trust me this is very easy। मैं पहले ये सब पढ़ा के समझा देती हूँ। पहले समझाने से पहले ये बता देती हूँ गाइस, पहला जो पैराग्राफ है इन्होंने सिकल सेल एनीमिया को डिजीज़ को बताया है कि होती क्या है, दैट यू ऑलरेडी नो, हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं ये बता देती हूँ। उसके बाद उस पर बेसिक क्वेश्चन है जो कि नीचे की सिर्फ 3 लाइनों में है। Sickle cell anemia, this is an interesting genetic disease. Normal homozygous individual, SS, have normal blood cells that are easily infected with the malarial parasite. ठीक है, thus many of these individuals become very ill from the parasite and many die. Obviously जो blood cell है वो sickle cell shape हो जाती है, जो blood vessels को block कर देती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, तो हिपोक्सिया से प्रॉब्लम हो जाएगा। Okay, so individual homozygous for the sickle cell trait, smallest, have red blood cells that are readily collapse when deoxygenated, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जा नहीं रहा तो वो कोलैप्स हो जाएगा। So although malaria cannot grow in these red blood cells, हाँ, हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा पॉइंट ये पढ़ते थे कि इन लोगों को मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया में जो पैरासाइट है दैट अटैक्स आरबीसीज, मतलब मल्टीपल फ्यूजन से वो ग्रो कर जाता है। जब हमारी सेल्स की ही शेप चेंज है वहाँ पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो यही लिखा है। सो इंडिविजुअल ऑफन डाई बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट। हाउएवर इंडिविजुअल विद अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल एस स्मॉल एस, हैव सम सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब मिक्स ब्लड होता है उनका, बट जनरली नॉट इनफ टू कॉज मोर्टेलिटी, कि वो मर जाएं, इतना तो नहीं होता, वो सर्वाइव कर लेते हैं। In addition, malaria cannot survive well within these partially defective, मतलब जिसकी कैपिटल है स्मॉलेस्ट कंडीशन है उसको मलेरिया नहीं हो सकता, वो जी जाएगा बहुत अच्छे से। So thus heterozygous tend to survive better than the either of the homozygous condition. तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। हाय आरुषि जी, हाय, पढ़ाई कर लो, हाँ जी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस। नीचे की 3 लाइनों में लिखा है दैट इफ 9% ऑफ एन अफ्रीकन पॉपुलेशन इज बोर्न विद अ सिवियर फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया, मतलब सीधी सी बात है, स्मॉलेस्ट कंडीशन है, सिवियर केस है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विल बी मोर रेजिस्टेंट टू मलेरिया बिकॉज दे आर हेट्रोजाइगस। तो हमने, मतलब इन्होंने बोल दिया कि देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 9% है और हमें एक हेट्रोजाइगस कंडीशन की कैलकुलेट करके बता दो। सिंपल सवाल, कॉमन सेंस ये है, हेट्रोजाइगस पूछा है तो हमने 2pq निकालना है यहाँ पे, ना कि कैपिटल एस स्मॉल एस को मल्टीप्लाई करना है। आपको ये क्यू स्क्वायर, मतलब रिसेसिव है ना, क्यू स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने 9 दे दी है, आपके पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, p कैलकुलेट करो और 2pq की वैल्यू बताओ, दैट्स अ क्वेश्चन। नाउ यू कैन रीड इट एंड टेल मी द आंसर। Ma'am, I can't understand biology. Dear, can I ask why? इस टॉपिक में बहुत लोग ना बहुत सोच में पड़ जाते हैं, ये टॉपिक है ही ऐसा, इसलिए मैं कमेंट भी पढ़ रही थी लेकिन कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, दैट्स इट। अब नहीं समझ आती है तो मुझे इस पर थोड़ी सी आप पे बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी कि आप कहाँ हो, किस क्लास में हो, क्या हुआ आपके साथ। जल्दी से, I have received 1 answer. Nice. Other people please confirm क्या ये आंसर सही है। I can't memorize too much. You know, I was
मैं स्क्रीन पे आ जाती हूँ. आई वॉज टीचिंग इन अ क्लास. तो मैं बच्चों से यही बात करी थी कि बायो में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोसेस और एक होती है टर्मिनोलॉजी. यू हैव टू लर्न अ प्रोसेस विद दैट ग्रेट टर्मिनोलॉजी. अगर आप प्रोसेस लर्न कर लो ना अच्छे से, टर्मिनोलॉजी अपने आप याद हो जाएगी. तो वर्ड मेमोराइज नहीं होते. और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलती हूँ कि बायो इज़ नॉट इंग्लिश, it is a different language that learn with the help of English. So please change your mind setup and learn it in a more technical way. It's not that much difficult to remember. Please speak in English. Already doing, dear. Please answer the question. बहुत easy है guys. ये वीडियो क्या देख रहे हो? थैंक यू सो मच. आप भी देख रहे हो. चलो गाइज लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हमारे पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने 2pq देखना है. देखो मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन पे जगह है कि नहीं है. गाइज डोंट लुक एट द स्क्रीन. मुझे इसका इफेक्ट डालना था, मुझे नहीं दिखाना था यहाँ पे. ओके सो क्यू स्क्वायर जो है हमारे पास 9% है. मीन्स कहने का है कि वो 0.9 है. तो इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं. ठीक है, तो हमारा जो क्यू वैल्यू हो गया वो हो गया 0.3 है ना. तो अब ये क्यू स्क्वायर था तो हमारा ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अच्छा 9% था. I have done a mistake. I should be sorry for that. That is 9%. So why would I consider it as 0.9? That will be 0.09 because you have to write 100 below it and then you have to calculate. So that 0.09. So to find, simply take the square of 0.09 to get 0.3 value, and then you know that P plus Q is equal to 1. You know this 0.3. So P will be 1 minus 0.3. That will be 0.7. So what you have to calculate? 0.7 आ गया 2pq. So that will be 2 multiply 0.7 multiply with 0.3, and that is of course 42.42, and that is 42% of the population which is heterozygous, means the carriers. Is it clear everyone? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मैम. वेल डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वंस अगेन एक्सप्लेन क्वेश्चन. अभी बताती हूँ. Thank you so much dear. Let me explain this question again. Some people are having problem with it. No issues. तो हम previous question फिर से कर रही हूँ guys. इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, हमें पता है जो हार्डी विनबर्ग का फॉर्मूला है दैट्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. इन्होंने सबसे पहले शुरू में सीकल सेल एनीमिया एक्सप्लेन कर दिया. मैं पढ़ नहीं रही, मैं सीधा बता देती हूँ. इन्होंने बोला सीकल सेल एनीमिया की 2-3 कंडीशन होती हैं. एक होता है होमोजाइगस, जहाँ पे कैपिटल एस कंडीशन आएगा, या फिर सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव है तो स्मॉलेस्ट. तुम होमोजाइगस कंडीशन पे ध्यान दो. होमोजाइगस कंडीशन है स्मॉलेस्ट, इस बंदे को हो गया सिकल सेल एनीमिया. उसकी सिवियर कंडीशन में दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई, क्योंकि उसकी सारी सेल सिकल सेल शेप हो चुकी हैं. देन देयर इज अनदर कंडीशन व्हेन द जेनेटिक मेकअप इज कैपिटल एस एंड स्मॉल एस. अब यहाँ पे ये इंसान है कैरियर ऑफ द डिजीज. इसकी आधी सेल्स नॉर्मल हैं और आधी सेल सिकल सेल शेप. बेटर चीज़ ये है कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय मलेरिया डिजीज़, क्योंकि मलेरिया में आरबीसीज जो होती हैं वो ब्लड मतलब जो प्लाज्मोडियम वाइविक्स होता है वो आरबीसीज को अटैक करता है और उसमें ग्रो ही नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी तो शेप चेंज हो गई है. तो हेटेरोजाइगस के लिए तो बहुत अच्छी कंडीशन है. फिर उन्होंने ये बोला कि एक पॉपुलेशन है अफ्रीका की जिसमें 9% लोगों को सिवियर कंडीशन है. सिवियर स्मॉलेस्ट मतलब कहने का है फॉर्मूला के हिसाब से उसने क्यू स्क्वायर वैल्यू दे दी 9%, मतलब 0.09. फिर उसने बोला कि आपको कैलकुलेट करना है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, कितने लोग कैरियर हैं डिजीज के. हेटेरोजाइगस का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2pq. तो हमने यहाँ पे 2pq वैल्यू कैलकुलेट करनी है. Can you give me okay the number? If you want any details you can contact on InstaSolve. You will get the answer. अच्छा, इन्होंने नेक्स्ट स्क्रीन पे मैंने सीधा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, दो आई थॉट आई विल सॉल्व इट, बट हमने दोनों ही कर लिया. तो इन्होंने नेक्स्ट स्क्रीन पे एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन दिया है.
कि जो 2pq वैल्यू है हमने कैसी कैलकुलेट करी। हमारे पास q स्क्वायर है जो कि है 0.09%, हमारी दैट 0.9% एक्चुअली, तो हमारी q वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3। तो अब हमने देखना है, क्योंकि हमें पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, हमने p वैल्यू निकालनी है जो 0.7 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने निकालना है 2pq जो कि एक्चुअली आता है 0.42। 42% ऑफ द पॉपुलेशन आर हेट्रोजाइगस मीन्स कैरियर। So guys, I hope it is clear to you. I am clearing this up and I am moving up to the next question now. Thank you. So guys, I have another question guys. Please answer the question. Within a population of butterfly, the color brown means capital B is dominant over the color white small b. And 40% of all the butterfly are white. समझे? कहने का ये मतलब है कि कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन है और 40% है सारे वाइट। मतलब हमारी जो 40% कंडीशन है वो है क्यू स्क्वायर, रिसेसिव एलील होगा ना, स्मॉल बी रिसेसिव एलील जो कि 40% है, तो ये हमारा क्यू स्क्वायर 40% है, मीन्स 0.4। एनीवेज, given this simple information, which is something that is very likely to be an exam, like calculate the following: the percentage of the butterfly in population that are heterozygous, clearly saying you have to calculate this one. The frequency of the homozygous dominant individual, homozygous dominant मतलब ये a स्क्वायर या फिर p स्क्वायर भी बोल सकते हो, ये कैलकुलेट करना है आपने। आपके पास q स्क्वायर वैल्यू गिवन है गाइस, कम ऑन सॉल्व इट। Guys, solve it. Come on, come on. Guys, I will just comment कि प्लीज़ क्लास का डेकोरम बना के रखें। हम लोग कुछ टॉपिक लर्न करने हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ लिसन टू द वीडियो। थैंक यू। सॉल्व इट, कम ऑन। क्यू स्क्वायर है गाइस 0.40, यही दिया है ना उन्होंने, 40% तो पॉपुलेशन आर वाइट, तो क्यू कैलकुलेट करो, इसका कितना आएगा, मतलब क्यू स्क्वायर है हमारा 4, क्यू कितना आएगा, लेट्स सी द आंसर। प्लीज़ आंसर सेंड कर दो। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है ठीक है, देयर आर 2 आंसर्स दैट आई हैव रिसीव्ड। Okay, let's see the solution guys. Two PQ is the answer. I mean 2PQ the answer is 2. I mean इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, नॉर्मली वैल्यू कैलकुलेट करी है। मैंने आपको क्या बोला था, हमारे पास जो वैल्यू है वो थी 40%, राइट, फॉर द रिसेसिव क्यू स्क्वायर। तो क्यू आ गया था हमारा 4 क्यू स्क्वायर, तो क्यू आ गया था, अच्छा दैट वाज 40% ना, ठीक है, मतलब ये आ गया था हमारा 0.4। तो अब इसको हमने 0.4 का जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0.4 है, तो 0.4 का स्क्वायर रूट करो गाइस, यू विल अप्रॉक्सीमेटली गेट 0.632 दिस वन, दिस इज द रूट स्क्वायर ऑफ 0.4, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो p हमारे पास q की वैल्यू है, तो it will be 1 minus 0.632 and you will approximately get 0.37 value. तो इन्होंने 2pq कैलकुलेट कर दिया which is 0.47. So that's it. I mean इन्होंने फिर क्या करा है, इन्होंने ये आंसर बता दिया 0.47, उसके बाद इन्होंने p स्क्वायर बताया, जो मैंने आपको बोला था कि a स्क्वायर या p स्क्वायर करना है, 0.37 का डबल किया, 0.14 आ गया आंसर। किसी ने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है 0.46 एंड 0.13, दैट्स सो नाइस, क्योंकि इसकी ये 2-3 डिजिट पे कैलकुलेशन चली जाती है तो दैट वैरीज, बट एनीवेज यू पीपल हैव आंसर्ड, आई रियली लाइक, नाइस, यू वर्किंग हार्ड ओवर दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से आंसर बता रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा ठीक है गाइज, इसको क्लीन करते हैं, आप लेट्स मूव फर्दर। Okay guys,
सो अब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़े से रह गए हैं बस. Assumptions underlying Hardy-Weinberg equilibrium are. अब मैंने ये चीज़ तो आपको बहुत बार बता दी गाइस. Organisms are diploid, mating is random, population size is infinitely large, all of the above. Please tell me the right answer. Come on, come on, come on. गाइस आंसर बताओ जल्दी से इसका. आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा आपके नीट के पेपर में भी. एक हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कंसीडर करने के लिए क्या क्या कंडीशन करते थे. एक आइडियलाइज कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अगर उनसे रिलेट करके इन पॉइंट्स पे आ सकते हो तो प्लीज़ बता दो आंसर. कम ऑन. चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ. Organisms are diploid, yes. Mating is random, yes. Population size is infinitely large, yes. तभी तो जीन फ्लो और इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तभी हम आइडियलाइज कंडीशन कंसिडर करते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव, yes. D is the correct answer. Clear guys? I am moving to the next question now, which is probably the last one, I feel. Okay. So in a population of 200 individuals, 72 are homozygous recessive for the character fragmented. Okay, so guys, I think I should be on the screen and I should, cut down whatever written below before you see the screen. I wanted to add some effect, but this is a solution that I'm cutting right now. I'll show you solution later. Now you see it. In a population of 200 individuals, 72 are homozygous recessive for the character fragmented twins. कोई भी कैरेक्टर है, फ्रेगमेंटेड ट्विंस ने दिखाया कि टोटल जो है 200 पॉपुलेशन है, जिसमें से 72 जो है वो है होमोजाइगस कंडीशन. समझ रहे हो? होमोजाइगस कंसीडर, यहाँ पे मैं कैपिटल पी कर लेती हूँ, ठीक है. होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, सॉरी. ओके, मुझे लगा डोमिनेंट है. ओके, सो यहाँ पे हमारा आ गया Q² वाली वैल्यू. ओके, सो फॉर द कैरेक्टर, सो 100 इंडिविजुअल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन डाई ड्यू टू फेटल डिजीज, कि 100 लोग तो मर गए. सो 36 ऑफ द सर्वाइवर आर होमोजाइगसली रिसेसिव. अब और दूसरा क्या है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन. बस आपको कुछ नहीं करना, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें जो डोमिनेंट अलील है P² या P की वैल्यू है, यही आपको कैलकुलेट करनी है. दैट्स इट. आपको इन्होंने 72 होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन पहले ही बता दिया. कम ऑन गाइस. नाइस. ओके, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. I repeat this question. In a population of 200 individuals, 72 are homozygous recessive for the character. 100 individuals from this population died due to fatal disease. Try to solve it, guys. वैसे आपको स्क्रीन नीचे दिख भी नहीं रही थी, मैंने नीचे कुछ कट किया, बट एनीवेज मैं उसे क्लीन कर दूंगी, आपके लिए चिंता मत करो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. सबसे पहले तो देखो ना कि 200 में से 72 कितना परसेंट है. जस्ट कैलकुलेट. I think I should help you with this now. Q² is equal to 72, not but 72 by 100, but because you have to calculate the percentage, so 72 by 100 आ जाएगा. उसके बाद 0.36. तो guys, let me help you with this. क्योंकि आपको पॉपुलेशन कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज में सबसे पहले,
तो जो क्यू स्क्वायर है दैट इज एक्चुअली 72/200, कितने हैं 200 है ना, हाँ, तो 200 हो जाएगा, क्योंकि सब हम जो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में करते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर द परसेंटेज। तो हमारा जो क्यू स्क्वायर वैल्यू है वो आ जाएगा 0.36, सिंपल एज दैट। आई मीन नाउ मतलब आगे तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही क्लीन तो कर रही हूँ। आई मीन यू कैन जस्ट सॉल्व दिस अप बाय योरसेल्फ। अच्छा, तो इसके बाद Q वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस? Q वैल्यू ऑब्वियसली 0.6। अब P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है, तो P हो जाएगा 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। हमने कैलकुलेट क्या करना था? क्या कैलकुलेट करना था हमने? Q ही तो करना था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील। इसने डोमिनेंट रिसेसिव या डोमिनेंट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया। अगर ये वर्ड यूज करता ना डोमिनेंट होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, तो हम वहां पे इसको क्यू स्क्वायर या कुछ भी वैल्यू करते। समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे होमोजाइगस मतलब 2 जीन्स हैं। अब सीधा इसने बोला डोमिनेंट एलील, एक एलील की बात हो रही है। सिर्फ P की वैल्यू है 0.4, छोड़ दो, इस पे C करेक्ट आ गया हमारा। समझ गए गाइस? बहुत ईजी है, इट्स वेरी ईजी। Hardy-Weinberg is very, very, very easy. Thank you guys. Let me clear it up for you. I hope everything is clear. अच्छा, एक last question भी है क्या? Okay guys, there was one more last question. I thought like we are on the last. एक question रह गया, बस उसी को solve कर लेते हैं. 1 in 10,000 babies in the US is born with phenylketonuria. सबसे पहले ये बताओ phenylketonuria कौन सी डिजीज है? डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑटोसोमल, कौन सी? इन द चैट बॉक्स टिल द टाइम। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय रिसेसिव एलील, मैंने पहले ही बता दिया। What proportion of the human population is likely to be a carrier of the PKU? I think ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे पहले भी सॉल्व किया है। तो आपने जो भी कैलकुलेट करना है गाइस, मैं यहाँ पे भी इसका आंसर जो है कट कर देती हूँ, हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे। आई एम कटिंग द आंसर दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आई थॉट आई एम गोना टीच यू बाय द आंसर इटसेल्फ, बट आई थिंक यू शुड बी सॉल्विंग इट फर्स्ट, देन आई विल शो यू आंसर। कम ऑन गाइस। अच्छा, अब क्या है, इसने बोला 1 in 10,000 बेबीज, मतलब ये जो 10,000 बेबीज है इनको डिजीज है, इज बोर्न विथ फिनाइलकीटोयूरिया। अब मेटाबॉलिक मतलब ये क्या है? रिसेसिव डोमिनेंट कंडीशन है। समझ रहे हो ना? रिसेसिव डोमिनेंट कंडीशन है, जहां पे एक रिसेसिव डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, मतलब वो रिसेसिव डोमिनेंट कंडीशन है। इसने क्यू स्क्वायर की वैल्यू दी है गाइज 10,000। परसेंटेज जो भी हो, हमारी क्यू स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी? नीचे 100 लगा दो, 0.00 इतना ही आएगा। देखो तुम्हारा मैथ्स। अब इसका क्यू कैलकुलेट करो, 0. What is meant by recessive and dominant characteristic? Okay guys, so I think genetics की कुछ टर्म्स रह गई, हमने लास्ट वीडियो में लर्न करी थी। डोमिनेंट होता है द जीन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, रिसेसिव होता है द वन दैट डजंट एक्सप्रेस इटसेल्फ, बट दैट जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन। मान लीजिए कैपिटल ए कंडीशन है, इसमें दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स अ डोमिनेंट कंडीशन। अगर मैं बोल रही हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन है, इसमें कैपिटल ए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट कंडीशन, क्योंकि जो रिसेसिव है स्मॉल ए वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा क्योंकि डोमिनेंट आ गया। मान लीजिए स्मॉल ए कंडीशन है, यहाँ पे कोई डोमिनेंट जीन नहीं है, इसको बुलाते हैं होमोजाइगस कंडीशन, जहाँ दोनों एलील रिसेसिव हैं। तो स्मॉल ए कंडीशन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, यहाँ पे वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक अपीयर हो जाएंगे। फिनाइलकीटोयूरिया डिजीज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन लोगों को डिजीज है और ये डिजीज है रिसेसिव, मतलब इन लोगों में डोमिनेंट कंडीशन जो थी, मतलब जहाँ पे ये डिजीज एक्सप्रेस हुई वो रिसेसिव जीन की वजह से हुई, दोनों जीन रिसेसिव थे। हमारी क्यू स्क्वायर की कैलकुलेशन दी है इन्होंने, हमारी क्यू वैल्यू जो है वो 0.01 है। अब आपको ये देखना है कि कैरियर कितने हैं। कैरियर का मतलब ये है कि किसको, मान लीजिए फिनाइलकीटोन्यूरिया, इन्होंने कोई जीन तो नहीं बताया ना, मान लीजिए फिनाइलकीटोन्यूरिया का पी जीन है,
तो किसके पास कैपिटल पी एंड स्मॉल पी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस देखना है तो 2 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2pq कैलकुलेट कर रहे हो। मुझे जीन का नाम कुछ और लेना चाहिए था। इमेजिन मैं जीन का नाम फिनाइल क्यूटोन्यूरिया से के जीन ले रही हूँ कि कैपिटल के स्मॉल के। मुझे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन देखनी है। हेट्रोजाइगस का फॉर्मूला होता है 2pq, बस वही कैलकुलेट करना है आपको 0.01 से। मुझे कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताओ। approximately 0.2, approximately 0.02, approximately 0.19 and approximately 0.98. Come on guys, I have got answer from 2 people. Okay, what other people have to say? बहुत सारे लोग नीचे की जो कटिंग है उस पर देख रहे होंगे कि क्या लिखा है। Come on guys, चलो ठीक है, टाइम्स अप। यहाँ कैलकुलेशन तो मैंने कर ही दी है, मतलब कहने का है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है P की, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01। कितना आ गया आंसर? 0.98 है ना। तो अब हमने 2pq निकालना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.98। यही कैलकुलेट किया। आई नो यू गाइस, थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन। इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, अभी भी किसी ने बी आंसर किया। बच्चा बी ऐसा नहीं हो सकता, इसका बी आंसर है क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेशन पहले ही बता दी है। हमारा पी की वैल्यू आ रही है 0.98 और हमने 2pq वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ हार्डी वेनबर्ग में हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी हेट्रोजाइगस की कैलकुलेशन पूछी है वहाँ आपको 2pq कैलकुलेट करना है, अदर देन जस्ट कैलकुलेटिंग pq or calculating capital A or small a, means that way you have to multiply it with 2. So I hope everyone is clear. Thank you so much guys, I really enjoyed the session. I hope you too, and please बने रहिए। ऐसा कुछ नहीं है समझ नहीं आता, you can just ask it all the time, every time if you don't understand. अपने डाउट्स आप इंस्टा सॉल्व पे भी डाल सकते हैं, आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हम आगे के लिए और भी टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे और आपके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे टॉपिक के सजेशन प्लीज़ चैट बॉक्स में दे देना। आई अकॉर्डिंगली प्रिपेयर माई कंटेंट फॉर दैट। एंड हियर अंजलि आहूजा saying from the Insta Solve, good night, sayonara, bye bye, take care and keep studying very hard. Bye guys, thank you.